Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today we are going to do the fourth and last activity of requirements engineering process, which is requirements validation. Today's topic are requirements validation and validation techniques. This is the fourth activity, as we are seeing in this diagram. This diagram we have first seen in the presentation of requirements engineering process. The first activity was related to requirements elicitation. Second activity was related to the requirements analysis and negotiation. Third activity for the requirement specification, which is the last lecture in which we learned about how to write size document. And the fourth activity is requirements validation. So let's start. What are the validation objectives? Certifies that requirements document is an acceptable description of the system to be implemented, and checks the requirements document for completeness and consistency, conformance to standards, whether it matches to the standards, whether it is complete, whether it is consistent, it does not contradict, whether requirements conflicts or not, whether they are technical errors, whether they are ambiguous requirements. So the objective is to certify that now the requirement document that have been made previously is an acceptable description of the system that we are going to implement or not. Analysis works with raw requirements. What is the difference between analysis and validation? Analysis, which is the second phase, and third is the validation. Because in analysis we also try to find out the completeness and resolve the conflicts, etc., etc. So it is better to have a clear view that what will be the difference between analysis and validation. So analysis is more about working with the raw requirement, as it is mentioned, as elicited from the system stakeholders. Have we got the right requirements is the key question to be answered at this stage. The requirement that we have get that functional, non-functional, user, etc., etc. The validation works with the final draft of the requirements document, that is with the negotiated and agreement requirements. तो SRS जो है वो तभी बनता है, वैलिडेशन हम तभी करते हैं जब हमारे पास सामने रिक्वायरमेंट का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ जाए, जो कि स्टेक होल्डर्स ने देखा हुआ होता है, और एनालिसिस के अंदर रॉ रिक्वायरमेंट्स हो जो इधर उधर से जो गेदर हम कर रहे होते हैं वो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं होता. एंड वैलिडेशन आंसर्स हेयर, हैव वी गॉट द रिक्वायरमेंट्स राइट, जो हमें मिली है क्या वो ठीक मिली है, इज द की क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एट दिस स्टेज. इसमें क्या होता है एनालिसिस में, हैव वी गॉट द राइट रिक्वायरमेंट, क्या हमें सही रिक्वायरमेंट मिली है, उसमें क्या है, क्या हमें जो रिक्वायरमेंट्स मिली हैं वो सही हैं या नहीं है. क्यों, इसमें क्या होता है कि हम इसमें कंप्लीटनेस फर्दर चेक करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स जो मिली हैं सारे वो हमने कंप्लीट तरीके से गैदर कर लिए हैं, वो सही हैं कि नहीं. और इसमें जो मिली है कि जो हमने कंप्लीट गैदर की हैं उनमें उन्हीं रिक्वायरमेंट्स में से जो गलती नहीं है, इसमें हम मिसिंग रिक्वायरमेंट्स देखते हैं. और इसमें हम रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद ऐसे देखते हैं कि क्या कोई चीज़ जो है वो जो इसमें हमने गैदर की है वो ठीक है या नहीं है. एंड दिस डील्स analysis deals with the raw phase, raw requirements, and validation deals with the proper document. So what are the inputs and outputs? Inputs of the recommendations are requirements document, जो कि size document है, organization knowledge है, organization standards है, and the output is list of problems और उसके agreed actions है. ठीक है. What are the requirements documents? It should be complete version of the document, not an unfinished draft, formatted and organized according to the organizational standards. Requirements document जो कि complete होगा, जो सारे document unfinished draft नहीं होगा, बीच में तो उठा के हम validation की तरफ भेज दें. And it should be formatted, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा कि इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन, उसका सेकंड फेज होना चाहिए, फिर उसकी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो, थर्ड फेज, फोर्थ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड शुड आल्सो मीट द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के साथ मीट हो, जो कि हम एज ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को डेवलप करने के लिए जा रहे हैं. सेकंड
इनपुट क्या है, फर्स्ट इनपुट क्या है, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेकंड इनपुट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, knowledge often implicit of the organization which may be used to judge the realism of the requirements. So knowledge which is related to the particular organization for which you are going to develop the system. We review that implicit knowledge in order to see the realism of the requirement, whether it properly understands the reality of the organizational requirements or not. Organizational standards, लोकल स्टैंडर्ड्स एग्जाम्पल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं आपके लॉज के, आपके करेंसी के, आपके लैंग्वेज के, आपके डीलिंग के हवाले से, आपकी जो है जो भी चीज़ें उस बिजनेस में जो लोकल स्टैंडर्ड है जो कि हर कोई फॉलो करता है। एक होते हैं आपके अपनी कंपनी के, एक होते हैं लोकल स्टैंडर्ड्स जो कि आप फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड्स अगर बैंकिंग सिस्टम है, जो हो सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो ड्रेस कोड में आएगा, गार्ड ड्रेस कोड में आएगा, एम्प्लॉय आएंगे तो वो टाई पहन के आएंगे, और जो है वो जब आएंगे तो हर किसी को ये उनकी अपनी ऑफिस का एक्सेस होगा, सुबह को 11 बजे से पहले एयर कंडीशन नहीं चला सकते। अब ये इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के हवाले से नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि भाई वो बैंकिंग जो है, लोकल स्टैंडर्ड क्या है कि भाई वो 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑपरेट करेगा, जो कि हर सारी बैंकिंग करते हैं। दूसरा कौन सा स्टैंडर्ड, हर बैंक के ब्रांच के साथ ATM होगा, ठीक है। हर बैंक जो है कैश विड्रॉल मैक्सिमम 20,000 या 25,000 जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। दीज आर द लोकल स्टैंडर्ड दैट एवरी system should have to follow, otherwise organizational standards will be specific to the organization. List of problems, which is the output of the requirements validation. List of problems and agreed actions. List of discovered problems in the requirement document. अब जो डॉक्यूमेंट मिला है उसको ओवरऑल रीड करने के बाद जो उसमें जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको लिस्ट डाउन करना। एंड एग्रीड एक्शन, लिस्ट ऑफ एग्रीड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए व्हाट कैन बी द एग्रीड एक्शंस। सम प्रॉब्लम्स में हैव सेवरल करेक्टिव एक्शंस, के एक से ज़्यादा उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। सम प्रॉब्लम में हैव नो एसोसिएटेड एक्शन, किसी को कोई भी जो है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। तो इन दैट सेंस हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ भी जा सकते हैं कि उसको उस सिर्फ एक पर्टिकुलर फीचर को, एक प्रॉब्लम को हम इम्प्लीमेंट करके यूज़र को दिखा के, ताकि वो फर्दर क्लैरिटी आउट हो जाए कि हाँ यार इस तरह से ठीक है कि नहीं। अब एग्रीड एक्शंस किस तरह देंगे, उसका पूरे का पूरा प्रोसेस है, करेक्टिव एक्शंस होंगे, उसको हम रिव्यू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल रीड एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स, जो कि लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई। Look for a problems, meet and discuss the problems and agree on actions to address these issues. अब ये जो इनपुट हुआ रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन में, अब क्या होंगे, फाइंड आउट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और एग्रीड एक्शंस। वो कैसे होंगे, रिक्वायरमेंट्स रिव्यू, जब हम रिव्यू करेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल रीड एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स, लुक फॉर प्रॉब्लम्स, मीट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड एग्री ऑन एक्शंस टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। कि प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर एक्शंस हैंगे, कौन से हम जो है एक्शंस ले सकते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। वे डिस्कस कौन से ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिव्यू, कि हम रिव्यू प्लान करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स अमंग द स्टेक होल्डर्स, प्रिपेयर फॉर रिव्यू, होल्ड रिव्यू मीटिंग, फिर फॉलो अप उसके एक्शंस और उसका रिवाइज डॉक्यूमेंट्स। दिस इज द रिक्वायरमेंट्स रिव्यू प्रोसेस, पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। व्हाट इज द प्लान रिव्यू, the review team is selected and a place for the review meeting is chosen। कि review team जो चूज की गई, कौन कौन से बंदे होंगे, and a place for review, कि कहाँ पे वो मीटिंग जो कंडक्ट होगी, that will be chosen। distribute documents, the requirements document is distributed to the review team member। जब डॉक्यूमेंट हो वो टीम के जो पार्टिसिपेंट्स है, it will be distributed to all the team members, ठीक है, इन एडवांस, ठीक है, ताकि उस चीज़ को रीड करके आके डिस्कस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए जो है वो बैठ सकें। इंडिविजुअल रिव्यूअर्स प्रिपेयर फॉर रिव्यू, इंडिविजुअल रिव्यूअर्स रीड द रिक्वायरमेंट्स टू फाइंड कन्फ्लिक्ट्स, ओमिशंस, इनकंसिस्टेंसीज, डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड अदर प्रॉब्लम्स। वो जो इंडिविजुअल रिव्यूअर्स है वो अपने बेसिस पे उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, उनमें से कन्फ्लिक्ट ढूंढते हैं, ओमिशंस कि कौन सी हम निकाल सकते हैं, कौन सी इनकंसिस्टेंसी जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही,
डेरिवेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड, डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड कि कौन सी जो स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो नहीं कर रहे, और अदर प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे वो। होल्ड रिव्यू मीटिंग व्हेन एवरीबडी डज द ग्रीन सिग्नल, हाँ वी आर डन रीडिंग इट, नाउ यू कैन होल्ड द रिव्यू मीटिंग। फिर इंडिविजुअल कमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड एंड सेट ऑफ एक्शंस टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स इज एग्रीड। तो हर एक जिस तरह एजेंडा वाइज होता है, तो हर रिक्वायरमेंट को रिव्यू करने के बाद वहाँ पे मीटिंग के अंदर हर अपने कमेंट्स देगा और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, और उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा, उस करेक्टिव एक्शन, उसको जो है वो प्रॉब्लम के हवाले से वो नोट किया जाएगा। फॉलो अप एक्शंस, द चेयर ऑफ द रिव्यू चेक्स दैट द एग्रीड एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। आफ्टर द मीटिंग जो चेयर होगा वो चेक करेगा कि सारे जो चेक्स हैं वो उसमें जितने भी जो है वो एग्रीड एक्शंस हैं वो हो चुके हैं। रिवाइज डॉक्यूमेंट, द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर होंगे वो उसके एक्शंस के हवाले से दे आर गोइंग टू रिवाइज द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट द एग्रीड एक्शंस वट एवर दे आर एग्रीड अपॉन। एट दिस स्टेज इट मे बी एक्सेप्टेड और इट मे बी री रिव्यूड। अब एट दिस लेवल अगर वो सारे एक्शंस करेक्टिव हो गए हैं तो जो है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है सारे स्टेक होल्डर्स में सेंड करके, हमें वी आर ओके विद दैट। अदरवाइज दोबारा से उसको री रिव्यू के लिए जो भेजा जा सकता है। और फिर जो है जिस तरह से अक्सर मुल्कों के दरमियान जो डायलॉग्स होते हैं, जिस तरह देयर वाज द डायलॉग ऑफ कश्मीर इशू ऑन परवेज मुशर्रफ बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड बीजेपीज गवर्नमेंट, जो कि उस वक्त थी 2000 के ज़माने में, तो उसमें सीरीज ऑफ डायलॉग्स थे, वो सारे के सारे वो बंदे आते थे, रिव्यू करते थे, डिस्कस करते थे, फिर उसके में चीज़ें रिवाइज होती थी, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते थे, फिर उसकी जो है वो शेयर होती थी, फिर दोबारा से डायलॉग होता था। इस तरह जब तक वो चीज़ करेक्टिव ना हो, तो आफ्टर द डायलॉग वो काफ़ी हद तक जो है वो कहते हैं कि पर कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व हो जाने वाला था, लेकिन फिर जो है वहाँ पर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कोई अटैक हो गया, तो फिर वो सारा बैक ट्रैक हो गया। अदरवाइज कश्मीर का इशू जो था वो रिजॉल्व हो सकता था। तो वो रिवीजन चल रही होती जब तक सारे स्टेक होल्डर्स थे एग्रीड अपॉन। अगर रिवाइज डॉक्यूमेंट के बाद नहीं हुआ तो इट में बी री रिव्यूड, और री रिव्यूड के लिए वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स के ऊपर जो एक्शंस है वो किस तरह से जो एक्शंस लिए जा सकते हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन है, मिसिंग इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट है और अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन क्या है कि रिक्वायरमेंट्स में बी बैडली एक्सप्रेस्ड और मे हैव एक्सीडेंटली ओमिटेड इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स रिलीजिएशन, कि ऐसा भी हो सकता है रिक्वायरमेंट्स जो है वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किए गए, या उसमें से कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि उसमें से रिमूव की गई है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, सम इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, उसमें से इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स हु आर रिवाइजिंग द डॉक्यूमेंट टू डिस्कवर दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिस्टम स्टेक होल्डर्स, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की, वो जो डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर रहे हैं आफ्टर द करेक्टिव एक्शंस to find out the information from the stakeholders कि जो चीज़ हम मिसिंग है वहाँ से उसको वहाँ से acquire कर लें। Requirements conflict, there is a significant conflict between the requirements, the stakeholders involved must negotiate to resolve the conflict। तो जो conflict है requirements के दरमियान वो stakeholders जो है वो आपस में बैठ के डिस्कस करके conflict को must resolve करें। Unrealistic requirement, the requirement does not appear to be implementable with the technology available or given other constraints on the system. Stakeholders must be consulted to decide how to make the requirement more realistic. So the requirement, जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जेम्स कैमरॉन जो है जब एवेटार मूवी बनाने वाला था तो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं थी कि उस एवेटार मूवी को जो है बनाया जा सके 1990s में। तो उसने वो मूवी शेल्फ कर दी, फिर जब ये टेक्नोलॉजी आई तो फिर उसने मूवी का स्क्रिप्ट उठाया और फिर जो मूवी वो बनाई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, जिसने $3 बिलियन जो है वो अर्निंग जो है उस मूवी ने की है। दैट वाज अ वंडरफुल मूवी। सो स्टेक होल्डर्स मस्ट बी कंसल्टेड टू हाउ टू मेक द रिक्वायरमेंट्स मोर रियलिस्टिक। तो ऐसा करें कि या तो उसको रिक्वायरमेंट्स को और रियलिस्टिक बनाए कि वो बनाने जैसी हो। तो जब वो एवेटार मूवी बनाने वाला था तो उसको सजेशन दिया गया था कि आप ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं, कुछ तरह से कर रहे हैं ताकि आप रिक्वायरमेंट रियलिस्टिक हो, जो हम कर तो सके, लेकिन वो एग्री नहीं किया तो वो चीज़ बनी नहीं। तो सेम वे यू हैव टू एग्री ऑन मेक अ ट्रेड ऑफ एंड ट्राई टू फाइंड आउट टू डिसाइड हाउ टू मेक द रिक्वायरमेंट मोर रियलिस्टिक टू बी इम्प्लीमेंटेबल। अच्छा, एक और भी प्रोसेस तो जिसको कहा जाता है प्री रिव्यू चेकिंग, यानी कि हम रिव्यू मीटिंग से पहले जो है वो चेकिंग करें। जो ये जो प्रोसेस है
रिव्यू रिक्वायरमेंट्स रिव्यू प्रोसेस, इस रिव्यू प्रोसेस से पहले वी डू द प्री रिव्यू. Why we do that? Because reviews are expensive. Because they involve a number of people spending time reading and checking the requirements document. तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, उसको रीड करने का, उसको चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स को. This expense may be reduced by using pre-review checking, where one person checks the document and looks for straightforward problems such as missing requirements, lack of conformance to standards एंड टाइपोग्राफिकल एरर्स. तो वो सारा एक्सपेंस रिड्यूस किया जा सकता है. कोई एक बंदा, पर्टिकुलर बंदा चूज़ करके उसको बताया कि आप इसको रीड आउट करो, जो कि इसमें से मिसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेक करे, कन्फर्मेंस स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं दे वेरीफाइड हो दैट स्टैंडर्ड, टाइपोग्राफिकल एरर, इंग्लिश एरर हैं तो उसको रिमूव करें. एंड डॉक्यूमेंट में बी रिटर्न फॉर करेक्शन और द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर रिव्यूअर्स. तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको दोबारा करेक्शन के लिए भेजा जाए कि इसको रिवाइज करके करेक्ट करें, या प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं रिव्यूज़ के ज़माने. ये प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ लाइक व्हेन वी आर इन द लाइक सिंडिकेट मीटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको बुलाया जाता है, उनको डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, उसको उनको पैसे देने पड़ते हैं. तो उससे पहले कि जो है वो वहाँ पे जितने सारे फजूल किस्म के प्रॉब्लम्स हो, टाइपोग्राफिकल एरर्स हो, स्टैंडर्ड्स के फॉलो, उससे पहले उसे प्रॉपर तरीके से पूरा चेक करके बना के फिर उनको भेजा जाए. तो जब मीटिंग होगी तो वहीं पे जो भी थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट होंगे वो रिजॉल्व करके ख़त्म कर दिया जा सकता है. अदरवाइज वो मीटिंग दोबारा कॉल करेंगे, फिर दोबारा कॉल करेंगे, तो फिर दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव. प्री रिव्यू चेकिंग स्टेजेस आर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट goes to check the document structure, check document completeness, check document against standards, run automatic checkers and reports the problems. This is the pre-review checking stages. Review team membership, who will be the part of review team? Reviews should involve a number of stakeholders drawn from different background. अब वो जो हम बात कर रहे थे कि जो हम रिव्यू के लिए जब मीटिंग होगी तो वो रिव्यू टीम में हिस्सा कौन होगा. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ब्रिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज टू द रिव्यू. Stakeholders feel involved in the RE process and develop an understanding of the needs of other stakeholders. ठीक है. रिव्यू टीम शुड ऑलवेज इन्वॉल्व एटलीस्ट डोमेन एक्सपर्ट एंड एंड यूजर. एंड यूजर भी हो और डोमेन एक्सपर्ट भी हो उसके अंदर. तो अगेन गिव यू बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंडिकेट के. सिंडिकेट के अंदर आपके फैकल्टी भी होती है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार भी होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी होते हैं, आपके जो मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसके अलावा आपके जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो भी होते हैं, और दूसरे डोमेन एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं जो कि जिस हवाले से मीटिंग जो है वो कॉल की ये तो स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्ट भी बुलाया जा सकता है. तो ये जितने भी उसके अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं सिंडिकेट में, उनके हिसाब से जो है वो जो कि अगर कोई टेक्निकल मैटर है तो कोई टेक्निकल पर्सनस को एड्रेस कर सकता है, अगर कोई लीगल मैटर है तो लीगल बंदा जो उसको इस मसले के हवाले से डिस्कस कर सकता है. तो इस वजह से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी जो मीटिंग है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, हम उनको कॉल करते हैं, उस रिव्यू टीम मेंबरशिप का हिस्सा बनाते हैं. और उस रिव्यू टीम के अंदर जो है रिव्यू के अंदर कौन सी चीज़ों के हवाले से जो है वो रिव्यू किया जाता है. अंडरस्टैंडेबिलिटी, कैन रीडर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड व्हाट द रिक्वायरमेंट्स मीन, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, इसका मतलब क्या है. रिडंडेंसी, इज इंफॉर्मेशन अननेसेसरली रिपीटेड इन द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट. एंड रिडंडेंसी मीन एक्स्ट्रा एडिशनल रिपीटेशन, कि ऐसा नहीं हो कि एक इन्फॉर्मेशन जो है एक चीज़ बार बार जो है रिपीट की गई है, तो अननेसेसरी रिपीटेशन हो रही है डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको जो है वो प्रिंट आउट करना चाहिए. Completeness, does the checker know of any missing requirements or is there any information missing from individual requirement description? क्या चेकर को पता है कि कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग तो नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि मिसिंग है फ्रॉम कोई इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट की जो कि डिस्क्रिप्शन के हवाले थे. दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीटनेस. Ambiguity, are the requirements expressed using terms which are clearly defined? Could readers from different backgrounds make different interpretations of the requirements? Ambiguity means कि कोई चीज़ एम्बिग्यूस है, वो क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से उसमें से कोई रिजल्ट निकाल सकता है. तो ये चीज़ ना होना चाहिए. वो कोई ऐसी चीज़ है तो क्लियर डिफाइन होना चाहिए ताकि मुख्तलिफ लोग जो भी रीड करें उसमें जो इंटरप्रिटेशन लें, जो उसका आंसर लें, जो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी लें, वो सेम ही लें. हर कोई यार मैंने ये समझा इसका मतलब ये, तो मैंने ये समझा इसका मतलब ये था. दैट विल क्रिएट एन एम्बिग्यूस रिक्वायरमेंट. कंसिस्टेंसी, डू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स
include contradictions, are there contradictions between individual requirements and overall system requirements, कि कोई डिस्क्रिप्शन है रिक्वायरमेंट्स की जो कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही आपस में, आर देयर कंट्राडिक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स एंड ओवरऑल सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि वो आपस में है या ओवरऑल है, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए. Organization, is the document structured in a sensible way? Are the description of the requirements organized so that related requirements are grouped, कि क्या जो डॉक्यूमेंट है वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया. ऐसे नहीं कि इंट्रोडक्शन बाद में लिखा हो, डिस्क्रिप्शन पहले दिए, टेक्निकल लिटरेसी हम पहले दें, तो उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें, एक पूरा फ्लो जो है उसका मेंटेन होना चाहिए. और द डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइज सो द रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आर ग्रुप, ताकि ऑर्गेनाइजेशन होगी तो रिलेटेड चीज़ें जो आपस में ग्रुप होंगी और वो चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी. Conformance to standards, does the requirements document individual requirements that conform to define standards, which standards from the organization and the local standards of the business, are departures from the standards justified? Departures means कोई ऐसी चीज़ें जो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करी तो क्या वो जस्टिफाई हो रही है, क्या हमने सही तरीके से बताई कि क्यों हमने इस तरह से किया, व्हाट इज़ द रीज़न कि ये रिक्वायरमेंट हमने आउट ऑफ द वे जाके स्टैंडर्ड को हटा के हमें ये चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं. Traceability, are requirements unambiguously identified, include links to related requirements and to reason why these requirements have been included, कि जो रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, उनके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड लिंक जो बनाए गए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से वो क्लियर नहीं है या शामिल नहीं है, तो दिस शुड बी ट्रेसेबल. अब कौन से क्वेश्चंस हैं, चेकलिस्ट क्वेश्चंस और उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो हमने देखे हैं प्रीवियसली, ये रिव्यू चेकलिस्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं. अब हम कौन सा पॉइंट जो है वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को चेक कर सकें. इज ईच रिक्वायरमेंट यूनिक आइडेंटिफाइड, क्या हर रिक्वायरमेंट यूनिक है, रिपीट तो नहीं हो रही, अगर यूनिक है तो वो मीन्स ट्रेसेबल भी होगी, इट विल बी कंफर्मेंस टू स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड के हवाले से कंफर्म भी करेगा. ये दोनों क्वालिटी एट्रीब्यूट विल बी चेक विद दिस क्वेश्चन. आर स्पेशलाइज्ड टर्म्स डिफाइंड इन द ग्लोसरी, क्या जो ऐसे टर्म्स हैं विच आर नॉट क्लियर या बाय एवरी यूज़र, तो क्या वो डिफाइंड है, अगर हैं तो वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो सकती है, आपको जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी इस टर्म का मतलब क्या है. डज द रिक्वायरमेंट स्टैंड ऑन इट्स ओन और डू यू हैव टू एग्जामिन अदर रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, कि एक जो रिक्वायरमेंट जो क्या वो सही तरीके से अपनी जो है वो डिपेक्शन सही से बता पा रही है, या हमें इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को समझने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट्स को जो अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है. तो दिस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंप्लीटनेस. डू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट यूज द टर्म्स कंसिस्टेंटली, क्या जो रिक्वायरमेंट्स है वो टर्म्स जो है वो कंसिस्टेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं. कंसिस्टेंटली जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था आपको टीचर्स और फैकल्टी का और प्रोफेसर्स का. अगर आपने टीचर यूज़ किया तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यू नीड टू यूज़ द वर्ड टीचर्स. इफ़ यू आर यूजिंग द प्रोफेसर तो यू नीड टू यूज़ द वर्ड प्रोफेसर, अदरवाइज इट विल बी एम्बिग्यूअस एंड क्रिएट अ कन्फ्यूजन कि यार वो टीचर का मतलब क्या है, वो प्रोफेसर किसी जो है वो नॉर्मल टीचर को कहते हैं, लेक्चरर को, या सिर्फ प्रोफेसर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के बाद बनता है, तो वो एम्बिग्यूअस हो जाता है. इज द सेम सर्विस रिक्वेस्टेड इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, आर देयर एनी कंट्राडिक्शंस इन दिस रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है किसी सर्विस को अक्वायर करने के लिए वेदर दे तो जो है वो कोई कंसिस्टेंसी और रिडंडेंट तो नहीं है चीज़ें. इफ अ रिक्वायरमेंट मेक्स रेफरेंस टू सम अदर फैसिलिटीज, आर दिस डिस्क्राइब्ड एल्सवेयर इन द डॉक्यूमेंट. इफ द रिक्वायरमेंट इज मेकिंग अ रेफरेंस टू सम अदर फैसिलिटीज, अगर वो दे रही हैं तो वो रेफरेंस अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में तो वो कंप्लीट है. आर रिलेटेड रिक्वायरमेंट ग्रुप टुगेदर, इफ नॉट डू दे रेफर टू ईच अदर. ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, इफ द रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, ऐसा होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि कंबाइंड होती है, मीन्स के वो ऐसी मेजर रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम डिवाइड करके फर्दर डिकम्पोज करके फर्दर स्मॉलर रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं. When we divide or decompose that big requirement into the smaller requirement, these requirements should be either grouped together, or if they are not grouped together, they must refer to each other at least. Okay, after completion of the requirement, this major requirement or this feature can be achieved. The prototyping, for some requirements, when we have a conflict that cannot be resolved, so there are one way to resolve all those conflicts, or
और व्हेन वी आर डन विद द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, तो तब भी जो है हम इसको प्रोटोटाइपिंग के हवाले से चेक कर सकते हैं स्मॉलर लेवल पे। So prototyping for requirements validation demonstrate the requirements and help stakeholders discover problems. Validation prototypes should be complete, reasonably efficient and robust. It should be possible to use them in the same way as the required system. कि प्रोटोटाइप जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को डिस्कवर कर सकें, यूजर्स को दिखा सकेंगे। इस तरह से चीज़ जो है वो आपके सिस्टम में होगी। वैलिडेशन प्रोटोटाइप शुड बी कंप्लीट, रिजनेबली एफिशिएंट एंड रोबस्ट, जो है वो रोबस्ट होना चाहिए, शुड बी कंप्लीट एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड कि भाई हम इस तरह से जो है सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो छोटे लेवल पे जो है हम एक सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स को देख के डिज़ाइन करके देख सकते हैं, स्मॉल स्केल पे प्रोटोटाइप बना के, ताकि यूजर को पता चल सके इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो दिखेगा। When they agreed upon this prototype, then we go to the a proper implementation of the system and design of the system. So prototyping for validation: choose prototype testers, develop test scenarios, execute scenarios and document the problems. Choose prototype testers. The best testers are users who are fairly experienced and who are open-minded about the use of the new system. And users who do different jobs should be involved, so the different area of the system functionality will be covered. तो प्रोटोटाइप टेस्टर्स कौन हो सकते हैं? ऐसे यूजर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में उनको पता हो, एंड हु आर ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मीन्स कि न्यू सिस्टम को अडॉप्ट करने के हवाले से जो है वो ओपन माइंडेड हो कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ आएगी तो दैट विल बी हेल्पफुल टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ना हो कि वो जो है कुछ लोग जो है दैट विल बी रेजिस्टर्स, जो नहीं यार ये सिस्टम आ जाएगा तो हमारा काम मर जाएगा या हमें सीखनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें जो रिलेक्टेंट होते हैं इन चीज़ों के हवाले से। एंड यू फाइंड ऑल सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। जिस तरह आपकी क्लास में बच्चे होते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि हाँ ठीक है यार सर क्लास हो, काफ़ी टाइम हुआ क्लास हुआ नहीं, या मसला हो रहा है तो समझ में नहीं आया, तो क्लास होगी तो समझ में आएगा। और ऐसे भी बच्चे होंगे नहीं यार छुट्टी करो आज क्लास नहीं लो और छोड़ दो, ना हो तो बेहतर है आज जाने दो यार। तो यू नो, ओपन माइंडेड एंड क्लोज माइंडेड जो कि भागते हैं काम से। एंड यूजर्स हु डू डिफरेंट जॉब्स शुड बी इन्वॉल्व सो दैट डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी विल बी कवर्ड। सो एंड यूजर्स जो कि मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कि वो फंक्शनलिटी को है को अनकवर कर सकें। जिस तरह से आपके आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रोटेट करते हैं, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे, कभी रिसेप्शन में बैठा देंगे, कभी पेमेंट में बैठा देंगे, कभी सर्टिफिकेट्स निकालने में बैठा देंगे। तो दे रोटेट दोज एम्प्लॉयज़ सो दैट दे मस्ट अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी। तो कहीं भी कोई जॉब छोड़ के चला जाए, इसका फ़ायदा भी ये होता है तो वो आराम से रिप्लेसेबल होगा, क्योंकि दूसरा एम्प्लॉय जो उनके पास काम करे उनको हर चीज़ का पता होगा कि इस काउंटर में बैठना है तो क्या करना है, दूसरे काउंटर में बैठना है तो क्या करना है, ठीक है। और वो जो है वो रोटेट होने के साथ साथ उनका माइंड भी फ्रेश होता रहता है, वो बोर नहीं होते। तो इससे काफ़ी सारे इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं कि एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स जगह पे नहीं रखना चाहिए, उनको रोटेट करना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ जो आपके दूसरे महकमे में भी होते हैं, नादरा में जिस तरह आपको रोटेट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपको पोस्ट कर देते हैं, बैंक्स में आपको रोटेट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप पोस्ट करते हैं। डेवलप टेस्ट सिनेरियोज। Careful planning is required to draw up a set of test scenarios which provide broad coverage of the requirement. And users shouldn't just play around with the system as they may never exercise critical system features. और कह रहे हैं कि टेस्ट सिनेरियोज बनाएं। टेस्ट सिनेरियोज का मतलब है कि एक सिनेरियो बनाए कि यार इस तरह से सिस्टम में इनपुट होगा, इस तरह से आउटपुट होगा, अगर ये आ जाए, एम्प्लॉई आ जाए, एक बंदा आ जाए बैंक में, उसके पास अपना जो है वो बैंक कार्ड ना हो, पैसे निकलवाना चाहे तो क्या करे, उसके बाद NIC ना हो तो क्या करे, और जो है वो NIC में आ रहा है उसका कार्ड घर पे नहीं पहुंच रहा, उसका तो एड्रेस जो है वो उसके नहीं पहुंचा, तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए। दीज आर डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज। ऐसा ना हो कि हम सिस्टम उठा के यूज़र को दे दें, कहेंगे यार इसको टेस्ट करो ये चल रहा है कि सही से नहीं चल रहा, नहीं, यू नीड टू डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज। के लोन अप्लाई करना है और तो लोन के हवाले से जो है उस बंदे के साथ ये ज़मीन नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नौकरी है तो उसको क्या करना है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो वो पूरा टेस्ट सिनेरियोज जो कि क्रिटिकल एनालिसिस करे सिस्टम फीचर्स को, तो उस तरह के टेस्ट सिनेरियोज वी नीड टू डेवलप। एग्जीक्यूट सिनेरियो। द यूजर्स ऑफ द सिस्टम वर्क यूजुअली ऑन देयर ओन टू ट्राई द सिस्टम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्लान सिनेरियो। तो बेहतर ये है कि वो सिनेरियोज होंगे
तो वो यूजर्स होंगे उन सिनेरियोस को एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम इज यूजुअली बेस्ट टू डिफाइन सम काइंड ऑफ electronic or paper problem report from the which users fill in when they encounter a problem. So whatever the problem they encounter, वो उसको document करें, whether in electronic format or whether in whether in a paper problem format, ताकि वो जो है इस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से लिखा जा सके, डॉक्यूमेंट किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि भाई यार आज मैंने ये देखा, इस सिस्टम को इस्तेमाल किया, टेस्ट सिनेरियोस किया, तो उसमें ये मसले आ रहे थे, क्योंकि वी लॉस्ट दो सिनेरियोस। जब भी हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, FYP की मीटिंग होती है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, सो आई सेड देम कि जब भी आपके पास प्रोजेक्ट के हवाले से आइडिया हो उसको पेपर पे लिखो, वरना आप बैठ के डिस्कस करते हो और यार ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इसमें ये फीचर्स हो, डिस्कस करने में डॉक्यूमेंट नहीं करते हो, यू लूज दैट इन्फॉर्मेशन, फिर माइंड में आपको दोबारा नहीं आती। तो जो भी चीज़ आपको प्रोजेक्ट के हवाले से करनी है, तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, वो सारी चीज़ें आप उसको लिखें और डॉक्यूमेंट करें। यूजर मैनुअल डेवलपमेंट for the prototyping, it is better to write a user manual for the requirement forces a detailed requirements analysis, and thus can user manual development, writing a user manual from the requirement forces a detailed requirements analysis, and thus can reveal problems with the document. Information that will be available in the user manual, description of functionality and how it is implemented, which parts of the system have not been implemented, वो भी लिखना चाहिए। प्रोटोटाइपिंग हम पूरे का पूरा सिस्टम तो नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, चंद फीचर्स जो कि एक सिस्टम का एक थोड़ा सा बिहेवियर दिखा सके, ओवरऑल बिहेवियर दिखा सके। हाउ टू गेट आउट ऑफ ट्रबल इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड, जो कि कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे थी, उसको इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, उसे निकालें। हाउ टू इंस्टॉल एंड गेट स्टार्ट विद द सिस्टम। Other portion of validation is system models. For some projects, system models may be developed based on the agreed set of requirements. कि हम प्रोटोटाइपिंग यूज़ न करें, बल्कि हम सिस्टम मॉडल जो है वो डिज़ाइन करें। दिस मॉडल में भी डेटा फ्लो मॉडल्स ऑफ द सिस्टम फंक्शनलिटी के पूरा डेटा फ्लो शो करवा सकें। ऑब्जेक्ट मॉडल्स हो सकते हैं, इवेंट मॉडल्स हो सकते हैं, इवेंट मॉडल्स के किस इवेंट पे कौन सा ट्रिगर जो है एक्टिवेट हो रहा है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। Validation of system model is an essential part of the validation process. Some checking is possible with automated tools. कुछ tools हो सकते हैं, जिस तरह आपके पास मेटा मॉडल्स होते हैं, उनके मॉडल्स होते हैं, तो इस तरह की करमेटा लैंग्वेजेस वगैरह की होती है, जिसमें मॉडल चेकिंग जो है जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिनेरियोज जो है होते हैं, जिसमें वो मॉडल के ऊपर अप्लाई करके उनकी चेकिंग की जाती है, जिसको मॉडल चेकिंग कहा जाता है विथ ऑटोमेटेड टूल्स। पैराफ्रेजिंग द मॉडल इज ऑल्सो एन इफेक्टिव चेकिंग टेक्निक। पैराफ्रेजिंग के थ्रू भी हम मॉडल चेक कर सकते हैं। किस तरह से होती है पैराफ्रेजिंग, हम देखते हैं अभी। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉडल वैलिडेशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ईच मॉडल इज सेल्फ कंसिस्टेंट। मॉडल जो है वो आपस में ही खुद एक सेल्फ कंसिस्टेंट हो, कंपोनेंट हो, किसी पे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इफ देयर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ द सिस्टम, to demonstrate that these are internally and externally consistent, to demonstrate that models accurately reflect the real requirements of system stakeholders. But this is very difficult because एक मॉडल के अंदर हम एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पुट आउट नहीं कर सकते, वरना इतने बड़े बड़े मॉडल्स बन जाएंगे कि वो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सो डेटा फ्लो डायग्राम फॉर द इशू, जिस तरह पैराफ्रेजिंग की जाती है। चेक यूज़र, तो लाइब्रेरी कार्ड उसका जो है वो इनपुट होगा और उसकी यूज़र डिटेल वेरीफाई होगी। नेक्स्ट आइटम यूज़र स्टेटस, जिसमें रिक्वेस्टेड आइटम होगा, फिर जो है यूज़र का स्टेटस हम चेक करेंगे। फिर आइटम स्टेटस, इशू एन आइटम, इशूड आइटम एंड यूज़र डिटेल्स। इसको पैराफ्रेजिंग की जाएगी कि चेक यूज़र के अंदर इनपुट्स और सोर्सेस कौन से होंगे, यूज़र्स लाइब्रेरी एंड कार्ड फ्रॉम एंड यूज़र, दैट विल बी इनपुट्स एंड सोर्सेस क्या होगा, एंड यूज़र होगा। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन कौन सा होगा, चेक दैट यूज़र इज वैलिड लाइब्रेरी यूज़र, उसको ये चेक करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट क्या होगा, यूज़र स्टेटस, क्या वो वैलिड लाइब्रेरी यूज़र है कि नहीं, एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यूज़र डिटेल्स फ्रॉम द डेटाबेस, जो डेटाबेस रिट्रीव करेगी। फॉर ईच लिस्टेड आइटम इन डेटा फ्लो, चेक आइटम, चेक यूज़र, इशूड आइटम, इसको पैराफ्रेजिंग जो है वो की जाएगी। Requirement testing. Each requirement should be testable. It should be possible to define tests to check whether or not that requirement has been met. Inventing requirement test is an effective validation technique, as missing or ambiguous information in the requirement description may make it difficult to formulate test. तो requirements को invent करना, उसके requirement test को invent करना एक validation technique है। As missing information, ambiguous information in the requirement may be difficult to formulate the test. अगर कोई चीज़ missing होगी तो उसमें से वो requirement का test
डिज़ाइन करना मुश्किल होगा। तो इससे भी जो है वो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कौन सी रिक्वायरमेंट जो है उसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है जिसका हम टेस्ट नहीं बना सकते। तो टेस्ट केसेस बनाने के दरमियान भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें से इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ईच फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड हैव एन एसोसिएटेड, हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होगी जो कि बिहेवियर रिक्वायरमेंट शुड हैव एन एसोसिएटेड टेस्ट जो कि हम उसको टेस्ट कर सकें। व्हाट यूजेज सिनेरियो माइट बी यूज टू चेक द रिक्वायरमेंट, कौन से सिनेरियोज जो है इस्तेमाल करके रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। डज द रिक्वायरमेंट ऑन इट्स ओन इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन टू अलाउ अ टेस्ट टू बी डिफाइंड, क्या रिक्वायरमेंट के पास इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बाय इटसेल्फ वो यूनिक है, आइडेंटिफाई हो सकती है कि वो जो है वो उसके लिए टेस्ट जो है वो डिफाइन किया जा सके। इज इट पॉसिबल टू टेस्ट द रिक्वायरमेंट यूजिंग अ सिंगल टेस्ट और मल्टीपल टेस्ट केसेस आर रिक्वायर्ड, अगर वो एक से चेक हो सकता है या उसके लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे। कुड द रिक्वायरमेंट बी रीस्टेटेड टू मेक द टेस्ट केस मोर ऑब्वियस, क्या रिक्वायरमेंट को फर्दर जो है हम रिफ्रेश करके सही तरीके से लिख सकते हैं कि उसका टेस्ट केस जो है वो डिज़ाइन कर सकें आसानी से। तो दीज आर द डिफरेंट रूल्स जो कि हम उसको चेक कर सकते हैं। हार्ड टू टेस्ट रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिफिकल्ट होंगी टेस्ट करने के लिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट्स होंगी और सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे कि रिक्वायरमेंट्स व्हिच अप्लाई टू अ सिस्टम एज अ होल, जो ओवरऑल सिस्टम में होंगी। इन जनरल दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स टू वैलिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड यूज्ड एज दे मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। Tests which are not executed cannot test for non-functional system-wide characteristics such as usability. Exclusive requirement, these are requirements which include specific behavior, which exclude specific behavior. For example, requirement may state that system failures must never corrupt the system database, कि आपका जो सिस्टम फेल हो जाए तो डेटाबेस करप्ट ना हो। अब इस रिक्वायरमेंट को हम किस तरह से जो चेक कर सकते हैं? इट विल बी डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट सच रिक्वायरमेंट एग्जॉस्टिवली, कि बार बार हम क्रैश करें और कितनी बार हम चेक कर सकते हैं वह भी वो उसको करप्ट नहीं करेगा। यहाँ some non-functional requirements such as reliability requirements can only be tested with a large test set. Reliability मतलब कि क्या सिस्टम रिलायबल है, इसके ऊपर लोड दिया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत नंबर ऑफ टेस्ट केसेस या इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम बहुत नंबर ऑफ यूजर्स होंगे जिनके मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन एट टाइम परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तो चेक कर सकेंगे यार ये रिलायबल है सिस्टम या नहीं। डिजाइनिंग दिस टेस्ट सेट डज नॉट हेल्प विद रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन, लेकिन उसको जो है जितना बड़ा लास्ट टेस्ट डिज़ाइन करने में जो है वो वैलिडेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट नहीं करेगा। इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट्स या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को चेक करना हमारे लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन प्रोसेस। इसकी क्योंकि ये पूरा जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेक्निक्स हैं, मतलब वो इवॉल्व हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल नहीं है कि इनको अप्लाई करके एकदम से हम प्रोसेस को जो है। और ज़्यादातर जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के हवाले से इट कम्स विद एन एक्सपीरियंस, व्हेन यू वर्क विद द पीपल हु आर एक्सपीरियंस एनफ दैट वर्कड इन द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, उससे जो है आपको ज़्यादा अंदाज़ा जो है मिल सकता है रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के हवाले से। So guys, this is the end of the requirements validation, and next week inshallah the next lecture will be regarding the requirements management process, which will be our last lecture of software requirements engineering process, and inshallah see you soon. Take care guys, bye bye.